सभी को फिर से प्रणाम। आई एम वेरी सॉरी, सडनली द नेटवर्क हैड कोलैप्स्ड। और दिस इज व्हाट योगा टीचेस अस। योग मीन्स समता। इन भगवद गीता लॉर्ड कृष्णा सेज समत्वम योग उच्यते, समता में स्थित होना योग है। तो जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं दोस्तों, जब थिंग्स डू नॉट गो योर वे और द वे you feel that it should be, but then to accept things, acceptance is a very very big virtue. So to accept what is happening, अब हमें स्वीकार करना है कि भाई जो हुआ उसको कैसे स्वीकारें और उसके साथ तालमेल बिठाएं. So I'm very sorry, things were not in my hand when the network fluctuated. Let's resume because बीच में network fluctuate भी था. I was sharing about Brihad Aranyaka Upanishad, wherein Yagyavalkya and Maitri ji is having a conversation. In that conversation, Maitri ji is suggesting her husband and the Guru to kindly guide her. So in that say she says, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो. ओम असतोमा सद्गमया तमसोमा ज्योतिर्गमया. तमस से ज्योति की ओर ले चलो, mortality से immortality की ओर ले चलो, because that is what you are going to seek. So this is the land of seekers, where husband could be or wife could be a mentor to or a guru to the spouse, or a parent could be, or even a child could be. कपिल मुनि अपनी माँ के लिए गुरु हुए, 27 महीने गर्भ में रहे और फिर सांख्य योग दिया बाहर आके. उनकी माँ ने कहा बाहर आओ भाई, इट्स बीन 27 months, 3 years of pregnancy, 3 times of normal pregnancy, प्लीज कम आउट. ही सेज मैं बाहर, ये दुखमय संसार है. तो उन्होंने बताया कि ठीक है, फिर इसके दुख दर्द दूर करने का निवारण बताइए. दैट इज हाउ ही केम आउट एंड ही ब्लेस्ड हिज मदर, एंड the mother was the first disciple. So this is the beauty of this yogic culture and land of rishis and sages and scriptures. So I was mentioning about Isha Vasupnishad, which is about the discipline of Lord, ईश्वर का अनुशासन. तो जो ईश्वर का अनुशासन है, उस ईशा वास्योपनिषद का शांति पाठ है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. Now this is an equation which I request all the participants right now and the people who will be viewing this video later to kindly ponder upon it. थोड़ा सा सोच कर देखिए. The equation which the Rishi is proposing to us, this is an equation, and this is the difference between a logical thinking mind of Western approach and a seeking mind of Eastern approach. The Rishi is here giving us the conclusion first, and then comes the methodology. In a scientific approach, the modern science, what the scientists do is पहले methodology and then they arrive or derive a certain conclusion. So E equals to mc square comes as a conclusion to Einstein. न्यूटन सीज के एप्पल गिर रहे हैं और न्यूटन सेज अच्छा देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ग्रेविटी, बट इट वाज देयर बिफोर एज वेल. सो द ऋषिज, they had this wisdom, and that is the beauty of the yogic culture and practice, that they announce the conclusion first. Like Maharishi Patanjali says, samadhi pad, the goal of life is samadhi. Now sadhana pad, how to achieve it. Now vibhuti pad, how the vibhutis will come, the benefits of doing it. And then you don't have to stop there. Then comes the reminder where towards the end of Maharishi Patanjali Yoga Sutra, Maharishi Patanjali says kaivalya pad. So पूर्णमदः, जस्ट थिंक अबाउट दिस इक्वेशन. सोचिएगा आप लोग कि पूर्ण से कुछ निकला जो कि पूर्ण है, पूर्ण से निकला पूर्ण है, जो बचा वो भी पूर्ण है, जो निकला वो भी पूर्ण. अंश नहीं निकला, अंश नहीं बाहर आया, पूर्ण बाहर आया. यू आर दैट पूर्ण, यू आर द यूनिवर्स. एवरी ड्रॉप इज एन ओशियन इज व्हाट द योगिक पर्सपेक्टिव टीचेस अस. आप पूर्ण हैं, आप अपूर्ण नहीं हैं. हाँ, माया से कह लीजिए, अविद्या से कह लीजिए, मन के आचरण से कह लीजिए, दैट वी हैव गॉट डिविएटेड सो मच दैट वी हैव फॉरगॉटन, और हम उसी पूर्णता को ढूंढने निकल गए, उसी आनंद को, उसी शांति को ढूंढने निकल गए. नहीं, यू आर दैट. तो उसी पूर्णता का एक अनाउंसमेंट है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते. पूर्ण से पूर्ण निकला, जो निकला वो भी पूर्ण, जो बचा वो भी पूर्ण. अब ये गणित, दिस इज para-mathematics, I say, super higher mathematics. In the worldly way, if we see, अगर किसी में से कुछ निकलेगा, if something comes out from a hole, that hole doesn't remain whole, WHOLE, that hole doesn't remain whole, it becomes something lesser than that.
and what has been taken out is considered as a portion of the whole. So if I add on this portion back to the superset, that will become whole again. Otherwise वो अधूरा है, पूरे में से कुछ निकला वो अधूरा हो गया संसार की गणित में। यहाँ पर ऋषि कह रहे हैं नहीं, पूरे में से जो निकला वो भी पूरा है, और पूरे में जो 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 कम कुछ नहीं हुआ वो भी पूर्ण बचा। जीवन में कभी आपने इसके ऊपर देखा हो कुछ ऐसा घटित होता हुआ कि सब कुछ पूर्ण ही बचा हो? कभी किसी ने अनुभव किया? राजकुमार जी, अतुल जी जो हमारे एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं, आप लोग अगर कुछ इस पे अपने व्यक्त करना चाहें व्यूज, एनी टाइम हैव यू कम अक्रॉस दिस दैट समथिंग विच हैज गॉन आउट ऑफ यू रिमेन्ड कंप्लीट इन इट्स नेचर, एंड दो इट केम आउट ऑफ यू इट डिड नॉट क्रिएट एनी डेप्रिसिएशन इन यू? आप तब भी उतने ही थे, पहले भी पूर्ण थे, बाद में भी पूर्ण थे। किसी ऐसी चीज में हम इसको देख सकते हैं जीवन में घटा के? बिकॉज योग शुड नॉट जस्ट बी अ फिलोसफी, इट इज अ वे ऑफ लाइफ, राइट? जीने का तरीका है। तो सोचकर देखें कोई ऐसा अनुभव, कोई ऐसा भाव, जीवन का हिस्सा जिसे जब हम जीते हों, शेयर करते हों, तो आप भी पूर्ण बचे, जिसको दिया वो भी पूर्ण प्राप्त किया, कुछ डिप्रिशिएट नहीं हुआ। चलिए मैं हेल्प करता हूं। थिंक अबाउट लव एज अ फीलिंग, प्रेम, और वो सिर्फ प्रेम ही है, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। प्योर, ट्रू, ऑनेस्ट लव जब आप किसी को देते हैं, जैसे एक माँ अपने बच्चे को प्रेम करती है, तो क्या वो अंश में प्रेम करती है कि पूर्ण में प्रेम करती है? पूर्ण में प्रेम करती है। इट्स अ कंप्लीट हैप्पीनेस, कंप्लीट लव विच आई एम शेयरिंग विद माई चाइल्ड, एंड what the child has received is complete. Does it depreciate something in you? Never. मुझ में वो depreciate भी नहीं हुआ, जिसको दिया उसे भी पूर्ण मिला। It's complete. It's always complete love. अगर वो सत्य प्रेम है तो, सच्चा प्यार है तो। If it is a worldly transaction of emotions, sorry to say, तो संबंधों में जब इमोशनल ट्रांजैक्शन होता है तो फिर हमारा चित्त चंचल हो जाता है। योगः चित्त वृत्ति निरोधः, योग चित्त की चंचलता को शांत करने की विद्या है, कला है। इट्स एन आर्ट एंड साइंस बोथ। टू ब्रिंग योर माइंड टू अ स्टेट ऑफ एक्सेप्टेंस एंड न्यूट्रलिटी, समता, समत्वम योग उच्यते। हे अर्जुन, समता में स्थित होकर युद्ध कर। जीवन एक युद्ध है, इसे लड़ना तो है। दैट इज वाई वी प्रोफाउंडली फॉलो इन मेनी गीताज, देयर आर सो मेनी गीताज। पांडु गीता जब पांडवों को सुनाई गई युद्ध के बाद, भीम ने और युधिष्ठिर ने कहा आपने अर्जुन को क्या बताया था, हमें भी बताइए। देयर वाज सम कन्वर्सेशन हैपनिंग बिटवीन यू टू, व्हाट वाज सो स्पेशल अबाउट इट, प्लीज टेल अस। सो व्हेन लॉर्ड कृष्णा री-नरेटेड इट, इट बिकेम पांडु गीता। जब जनक जी सपने में सपना देख के उठे, सीता के पिता, and he got scared that I saw myself as a beggar, now I'm a king, what is true? He was sweating badly in his bed and immediately he runs to his गुरुज आश्रम, अष्टावक्र जी, और वहां जाकर जब उन्होंने पूछा तो अष्टावक्र ने कहा ना तो वो सत्य था भिखारी, और ना ये राजा सत्य है। दोनों को जिसने साक्षी बन के देखा वो सत्य था। दैट वॉज ट्रू। यू आर द विटनेस, यू आर नीदर द किंग नॉर द बेगर। वो कहलाई अष्टावक्र गीता। लेकिन फिर भी इतनी गीताओं में हम क्यों भगवत गीता को इतना ज़्यादा सम्मान मिला, एक्सेप्टेंस मिली? बिकॉज दिस इज अगेन, यू नो, when Arjuna is wanting to step out from the war, he says to Lord Krishna, I don't want to fight, let me step back, let people fight if they want. आप और मैं तो धर्म जानते हैं, दुर्योधन धर्म नहीं जानता है, so let us step back. This is what Arjuna says, and it looks so logical and acceptable कि yes, he is not wanting to be a part of this violence anymore. He says even if I win and become a king, there is no point in doing it because इससे अच्छा भीख मांग के जी लूं. How can I live my whole life with the burden of killing my own loved ones, my own relatives, my own nephews? उसमें उनके भतीजे थे, cousin brothers थे, friends थे, गुरु थे, इतने सब के बीच में कैसे? तो I don't want to fight this war, and Arjun wants to step out. But what is Lord Krishna doing? वो उन्हें युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, बाधित नहीं कर रहे, प्रेरित कर रहे हैं. What started in the very first chapter of Bhagavad Gita, which is called as Vishad Yoga. Vishad means depression in Hindi. Depression, avsad,
He was in a विषाद, in a अवसाद पूर्ण स्थिति, हाथ पैर फूल रहे हैं, पसीना आ रहा है, गांडीव नहीं उठ रहा है. This is the one of the greatest warriors who's saying this, has faced the same situation, and yoga comes as a help. Therefore, yoga is not just about bending the body left and right, front and up. If that is the definition of yoga, any gymnast from a circus will be a yogi. No. So Adi Yogi Shiva or Vasudev Krishna is a yogi, Param Yogi. He is telling Arjuna to become a yogi. First, become balanced in your life, and then fight any war, any situation, face any situation you have, be it a battlefield of life. जीवन चुनौतियों और संघर्षों का ही नाम है, लेकिन इसमें समता के आधार पर. Therefore, he says what you think as violence is not violence. In fact, what you are saying that this will be a sin, it is not sin. You are fighting for righteousness. And if you step back from this war, that will be a sin. Don't think that will be a punya. No, it will be a pap, it will be a sin to step back from the fight of life. So life is always pushing us into a direction through various modes, sometimes happily, sometimes forcefully. ऐसी परिस्थितियां हमारे आसपास बन रही हैं based on many factors. One is the factor of teaching, another is factor of law of karma. What we had sown is what we are reaping. But whatever situation is coming in front of me, in that, according to Lord Krishna, if we become stable and we accept it with grace and solve it, even if the solution is about killing, is acceptable. But in what intent have I done it? With what intention have I killed someone? हम तो मन मन में ही मार देते हैं लोगों को, हमारी भावनाओं से, हमारी कटुता से, कड़वाहट से, गुस्से से. Even if I'm not spitting out my venom of anger on somebody, I'm thinking and I'm killing. मैं कर्म तो बना ही रहा हूँ. So, if I approach this from Maharishi Patanjali's perspective, he says, yoga chitta vritti nirodha. Chitta mane subconscious mind. If that is stable, if mind is stable, then whatever you do, you're doing it from the state of neutrality, equilibrium, samta. So Gita, then Maharishi Patanjali. If I come from the perspective of Ishavasya Upanishad, there the Rishi is telling everything is complete in itself. There is nothing going away. So going back to the example of love, actually, if you're in honest and pure and true love, there's no expectation in return. If I'm expecting something in return, that means it was something else. It wasn't love. So what we can conclude from that declaration of Ishavasya Upanishad is, चेतना बढ़ती है बांटने से, पदार्थ घटता है बांटने से. That is worldly mathematics. Material will depreciate when you will distribute it. But जो चेतना है, जो consciousness है, that will multiply when you distribute it. विद्या, प्रेम बांटने से बढ़ता है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है. Material पदार्थ से बना है. This is padartha, but within this padarth is the soul, which is chaitanya, conscious. If I'm not functioning on the scale of consciousness, on the frequency of consciousness, my life is definitely bound to be miserable. जीवन के कष्टों को, दुखों का निवारण कैसे किया जाए? भगवान बुद्ध के पास चलते हैं. भगवान बुद्ध ने कहा, संसार दुखमयी है. 4 noble truths. पहला, संसार दुखमयी है. गुरु नानक देव जी ने भी कहा, नानक दुखिया सब संसार. लेकिन ये एक सैडिस्टिक स्टेटमेंट लगता है ना. अरे कैसे इन महापुरुषों ने कह दिया संसार दुखमयी है, संसार तो बड़ा सुखमयी है. किसके लिए दुखमयी है? नॉट फॉर एवरीवन. Someone who is living in the scale of consciousness, this world is a beautiful place. This is a creation of Lord. How can it be bad? ये सुखमयी है. सुख और दुख क्या है? दुख is if somebody is living on the plane of materialism, पदार्थ के, materialism not only consumerism, वो तो है ही, पर एक जड़ के आधार पर अगर मेरा दृष्टिकोण है, if I'm seeing more myself as a body, if I'm seeing the world as more of this brick and wall and curtains and everything and my home and colors, if I'm seeing only through this perspective, then this is going to be a miserable world for me. Sometimes happy, sometimes miserable. Kabhi khushi, kabhi gum. But if somebody is staying in the state of consciousness all the time, ananda, blissful, because Atma is Sat Chit Ananda Swarupa. That is absolute, that is beautiful. और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, आप जी के देखिए ना. Have you ever experienced, I'm sure you must have, a moment of ecstasy in your life?
ask a mother when she takes a child in her lap, ask that child, west में now they have done this research, because they learn only through research. Our yogis and olden days people, they knew it, older generations knew it. अभी अपन देखते हैं ना मूवीज में या टीवी में या फोटोग्राफी शूट्स में, दैट द चाइल्ड इज ड्रेप्ड इनटू क्लॉथ एंड देन ब्रॉट टू द मदर्स लैप. नो, वो एकदम ना बच्चे को बिल्कुल बिना किसी वस्त्र के, और माँ के भी छाती पे रख दिया जाता है उसको निर्वस्त्र. The touch of that skin is so known to the child that it helps the child grow. चेतना का चेतना से स्पर्श है ना, प्रेम ऐसी बात है. तो ये मोमेंट ऑफ एक्सटेसी है, जहाँ वो बच्चे से पूछिए जब वो स्पर्श पाता है अपनी माँ का, माँ से पूछिए जब वो स्पर्श पाती है अपने बच्चे का. ये मोमेंट ऑफ एक्सटेसी हम सब ने, कभी आप किसी बहुत ही स्पिरिचुअली चार्ज प्लेस पे जाते हैं. मैं अभी गंगा जी किनारे ऋषिकेश में बैठा हूँ. गंगा है, हिमालय हैं, देवात्मा हिमालय, किसी तपस्वी की तपस्थली है. You must have experienced at least few times in your life that deep ananda bliss, that moment of happiness, ecstasy. जो व्यक्ति उस स्तर पे जी रहा है, भगवान बुद्ध की, अब गुरु नानक देव जी की बात उनके लिए नहीं है. नानक दुखिया सब संसार मीन्स ये संसार दुख में है, बिकॉज दिस इज मटीरियली ओरिएंटेड एंड इट इज चेंजिंग, इट इज पेरिशेबल. इससे जुड़कर नहीं सुख देख सकते, पर जो पूर्णता के आधार पर देख रहा है, कमिंग बैक टू ईशावास्य उपनिषद, वहां पर समाधान है. क्योंकि क्या समाधान है? ईशावास्यम, ईश्वर का वास है सब जगह, सर्वमिदम, सभी जगह ईश्वर का वास है. दैट मीन्स इन एवरीथिंग विच इज हैपनिंग इन योर लाइफ, इन एवरी ऑब्जेक्ट व्हाट यू आर कंज्यूमिंग, एवरीथिंग, द माइन्यूटेस्ट जो भी आपको सराउंड कर रही है, उसको आप जब देख रहे हो, यू आर कनेक्टिंग विद दैट, द कॉन्शियसनेस बिहाइंड इट, पदार्थ के पीछे की चेतना को देखना. एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. हमारे घरों में होता है, स्पेशली हिंदू परिवारों में, कि जब भगवान जब कुछ बनाते हैं तो भगवान को भोजन अर्पण किया जाता है एज अ भोग, एंड देन दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द होल फैमिली as a prasad. Now this is a practice. This is how our rishis worked out with our subconscious mind. They were great psychologists, mind you. मनोवैज्ञानिक थे वो, नहीं थे क्या? The Western psychology is just 100 years old. Freud, World War, अभी 100 साल भी नहीं हुए. Eastern psychology is actually talking about the psychology of a guru and a shishya, a mother and a child. जब शिष्य बता नहीं सकता है तब भी गुरु जान जाता है. आप कभी महर्षि रमन की तपस्थली जाइए. पॉल ब्रंटन वाज अ जर्मन मॉन्क, नॉट अ मॉन्क, अ वॉन्डरर हु केम टू इंडिया फाइंडिंग आउट द इंडियन मिस्टिक्स. और साउथ इंडिया में उनकी समाधि है महर्षि रमन की. रमन महर्षि लास्ट के 40 years ही डिड नॉट अटर अ सिंगल वर्ड, कुछ नहीं बोलते थे, मौन में थे. एंड पॉल ब्रंटन केम टू हिम, अ जर्मन वॉन्डरर, एंड ही हैड सम क्वेश्चंस, स्पिरिचुअल क्वेश्चंस इन हिज माइंड. वो जिज्ञासु थे. ऑल दोज क्वेश्चंस वर आंसर्ड without any वैखुरी वाणी. आई एम नॉट गोइंग इनटू ऑल दैट कि 4 तरह की वाणी होती है, परावाणी में ही बात हुई. दिस इज इंडियन साइकोलॉजी, गो बैक एंड स्टडी. इसीलिए तो गीता युद्ध के बीच में साइकोलॉजी है, ट्रांसफर हो गया पूरा ज्ञान. बिकॉज मन जड़ है, आत्मा चैतन्य है. आत्मा से आत्मा का संवाद जब हो रहा है तो वी डोंट नीड दीज ऑब्जेक्ट्स, दीज टूल्स ऑफ फैकल्टीज ऑफ माइंड एंड बॉडी एंड इंद्रियां, कि हम कान से सुनेंगे, आंख से पढ़ेंगे, देखेंगे. नहीं, जस्ट ट्रांसफर, डाउनलोड हो गया पूरा पूरा फाइल. यू डोंट इवन नीड एन इंटरनेट, सब कुछ वही कनेक्शन है बस. पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते. तो द वर्ल्ड इज नॉट मिजरेबल for people who are living in that पूर्णता, who are able to see that consciousness behind material. ईशावास्यम इदं सर्वम, सब जगह. वो जो देख पा रहा है वो तो चैतन्यता में है. तो बुद्ध को यदि कोई गाली दे रहे हैं, कोई उन्हें बुरा कह रहे हैं, बुद्ध को मुस्कुराना आता है. बुद्ध doesn't get impacted by it. That is भगवान बुद्ध. That's a बुद्ध means realized soul. Someone, कोई बुद्ध पुरुष को देखिए आप, वो समता में होंगे. They won't get deviated or miserable by situations changing outside because they are being at stillness within. मैंने अपने गुरुदेव के बारे में सुना है, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के बारे में, कि when he was addressing some people and the news broke that his biological mother, क्योंकि वो अपनी spiritual माँ तो गायत्री माता को मानते थे, तो ताई जी बोलते थे अपनी माँ को, सभी लोग उनकी माता जी को प्रेम से. ताई जी का जब देहांत हुआ
Param Puja Gurudev was addressing people. He was enabling people to uplift their consciousness, and he was on the dais. And when the news came to him in between the program, he just looked upon in the sky and he said, I have offered my prayers. अब शरीर के साथ आपको जो करना है करिए, चेतना के साथ तो मैं छुड़ा हूं. Now this is a yogi who doesn't get deviated, and that is what yoga tells us, to get into a state where you are in absolute balance. Therefore योग की जब परिभाषा हम ग्रामरेरियन पाणिनि जी के हिसाब से देखते हैं, द लिटरल एपिटिमोलॉजी ऑफ द वर्ड योग, ही सेज it is about discipline, it is about balance, it is about communion. जुड़ाव, योग माने जुड़ना. It is about concentration, it is about control. Control, concentration, communion, 3 C's. If we can have these virtues. Control, नॉट इन कंट्रोल इन टर्म्स ऑफ डोमिनेशन, कि मेरे पास पैसा है मैं अपने नौकर को कंट्रोल कर रहा हूँ, मेरे पास पावर है मैं अपने सबॉर्डिनेट को कंट्रोल कर रहा हूँ, मैं पैसा कमाता हूँ तो घर में मेरी चलेगी, बिकॉज आई एम बायोलॉजिकली एल्डर, द यंगर वन शुड लिसन टू मी. नहीं, ये संस्कृति नहीं है योग की, प्लीज. दिस इज ऑल वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेशन. हियर डोमिनेशन कुड बी अ स्मॉल चाइल्ड. ऋषि कपिल कैन टीच हिज मदर अबाउट सांख्य योग. This is that science. यहाँ मीरा अपने भक्ति का प्रमाण मृत्यु का वर्ण करके भी दे सकती है, और मृत्यु उन्हें छू भी नहीं पाती. कहते आइए करिए, विश लेके आइए, कोई बात. नाउ वी आर अप्रोचिंग होली, a beautiful festival of teachings. This is again a beautiful psychology our rishis they knew. If you want to be exuberant, happy every day, you need to be in a mode of festival, in a mode of ecstasy. Life is a festival, so they purposely created these festivals. They built the stories around it. Yes, it is true also, but they made sure that these stories remained with us. This is not just cooked up stories कि राम थे या प्रहलाद के साथ ऐसा हुआ. This is real. If you really want to go and find out where Hiranyakashipu lived in India, go to a place in Uttar Pradesh called as Hardoi. Hardoi, Herdoi, was actually called as Haridrohi. That was the name of the place, Haridrohi. Haridrohi was Hiranyakashipu. He wanted to fight against Lord Vishnu. And when he found that his own son of 5-year-old, when he comes back from school, Gurukul of Shukracharya, and Prahlad talks about the stuti of Vishnu, प्रहलाद उनकी गोदी में बैठे थे हिरण्यकश्यप की, and he just throws him down on the floor. He says, how can he speak in favor of my enemy? और फिर उसके बाद उसके साथ क्या अत्याचार करने की कोशिश की गई. This all we have learned from since our early childhood, that how Holika was brought in and she was asked to kill the child. वो सब आपको पता है. I'm not investing time on it. लेकिन हमें याद आना चाहिए कि योग किसे कहते हैं, समता किसे कहते हैं. प्रहलाद का जीवन देखिए आप. When all this episode went, and then Narsingh Bhagwan came, and when the father asked his son that, can your Lord come from this wall? He says, yes, he can come from this pillar. और Narsingh Bhagwan प्रकट होते. There comes another lesson of yoga. Devotion, samata. Narsingh Bhagwan, because you know that the boon by Brahmaji to this fellow Hiranyakashipu was कि आप ना तो दहलीज के अंदर मरेंगे, ना दहलीज के बाहर, ना हवा में, ना ज़मीन पर, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना मनुष्य से, ना पशु से. तो therefore this नरसिंह अवतार came. ईशावासम, ईश्वर का वास देखिएगा. एंड देन ही इज किल्ड. वो अपनी गोद में लेके दहलीज के बिल्कुल ऊपर खड़े होकर उसका छाती फाड़ देते हैं अपने नाखूनों से. दिस इज हाउ इट हैपेंड, राइट? नाउ गो बिहाइंड द ड्रामा व्हिच इज हैपनिंग. नाउ इज नॉट ड्रामा इन द टर्म्स ऑफ ड्रामा. ड्रामा मीन्स एक पात्र है. ये सब पात्र हैं हमें सिखाने के लिए. सो व्हेन नरसिंह भगवान, आफ्टर ऑल दैट एंगर, बिकॉज व्हेन अ लायन इज इन एंगर, you can imagine the kind of roaring happened, the thundering happened, and a demon has been killed. It's been all bloodbath, and you can now visualize just for a moment that he had kind of all blood on his teeth and his beard. और उन्होंने जो माला पहनी है वो उसकी पेट की आंतड़ियां जो फाड़ी थी उससे उसकी माला पहन के खुद को सुशोभित किया है. नरसिंह भगवान का कभी आप ऐसा देखिएगा, बड़ा भयावह है. And then he is seated, and there comes all the other forms of Lord Brahma, Shiva, and everyone. And then the story says, आपको भी भक्तमाल पढ़िएगा भक्तों के बारे में, तो प्रहलाद जी का व्याख्या वहाँ पे मिलेगी आपको. नाभा जी ने लिखी है भक्तमाल वृंदावन के संत में. फ्रॉम देयर
Brahma ji and everyone is scared. Even Lakshmi ji is not wanting to go near Narayan and say that, please calm down. आंखों में लाल खून उतर आया है, शेर बैठा है एक, और एकदम गुस्से में बैठा है, क्रोध में. And Prahlad, now look at the love towards the deity. Prahlad is not at all, not even an iota of scariness, because what yoga, what spirituality teaches us, what this culture, this land of Himalayas teaches us, my dear friends, is अध्यात्म का सबसे पहला गिफ्ट है निर्भय हो जाना, अभय हो जाना. यू बिकम फियरलेस. फियर ऑफ डेथ है ना. महर्षि पतंजलि के पास फिर चले तो उन्होंने कहा अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेषा, अभिनिवेशा, पंच क्लेशा. 5 तरह के क्लेश हैं. उसमें डेथ का जो फियर है, अभिनिवेश, मेरा शरीर मुझसे छूट ना जाए, दैट देहा शक्ति जिसे हम कहते हैं भक्ति की भाषा में, ये छूट, इससे हम छोड़ना ही नहीं चाहते. बुजुर्ग से बुजुर्ग, बीमार से बीमार, कितना भी व्यक्ति पीड़ित हो, शरीर से पीड़ा पा रहा है, तब भी इस शरीर को नहीं छोड़ना चाहता है. आदमी मरना नहीं चाहता है, जीना चाहता है. अच्छी बात है, जीवंतता की बात. लेकिन शरीर का मरना है ही नहीं है, उसे मालूम नहीं है, इसलिए मृत्यु के बारे में जानता नहीं है. तो भक्त प्रहलाद गोज टू नरसिंह भगवान जी. नाउ दिस इज अगेन समता, निर्भयता. These are the traits. If you are getting in your life all these things, believe me, you can. How do I know if I'm improving in yogic discipline? How do I know the true yogic discipline? Not about flexibility of body. That is important. Asanas are important. They help us, but only to reach a certain level. Beyond that, it's a journey within. वो है ना बहिरंग योग और अंतरंग योग. तो जब वो डिवोशनल के साथ में अपने जाते हैं नरसिंह भगवान के पास में, and looking at him, भक्त प्रहलाद sits in the lap of नरसिंह भगवान. कोई भय नहीं लगता. And listen to the prayer what प्रहलाद जी says. He says, हे परमात्मा, मुझे आपके इस रूप से भय नहीं लग रहा. And that is where in भक्तमाल this स्वरूप of नरसिंह भगवान has been explained, कि जिसमें आंतें पहनी हुई हैं, इंटेस्टाइन और खून है, सब कुछ है. He says, I'm not at all scared by your looks right now, that I'm sitting in the lap of a lion. No, I'm sitting in the lap of my father. I'm at absolute assurance. He says, I'm sitting in the lap of my father. I only have one prayer. And what that prayer is, he says, जैसी आसक्ति, जैसा अटैचमेंट लोगों को दुनिया से है, पदार्थ से है, विषयों से है, विषयासक्ति, विषयानंद. लड्डू पेड़ा से, अठन्नी चवन्नी से हमें प्यार है ना. अठन्नी दास चवन्नी दास है, लड्डू दास पेड़ा दास, कुछ मिल जाए भी हमारी लार टपकने लग जाएगी. हमारा मटेरियल की तरफ इतनी आसक्ति, इतना अटैचमेंट है. वैसा अटैचमेंट, उससे भी ज्यादा अटैचमेंट मुझे आप अपने प्रति दे दीजिए. अगर अटैचमेंट, ये चेतना में जीने वाला व्यक्ति कह रहा है, जिसके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, जिसका अपना पिता है उसके ऊपर अत्याचार कर रहा है, पर वो समता में है. 5 साल की उम्र में ज्ञान था प्रहलाद जी के पास में. So Nanak Dukhya Sab Sansar is not for those who are living in consciousness. If we learn, and all these yogic practices, Sadhana Pad, the 2nd chapter of Maharishi Patanjali's Yoga Sutra, is actually about how do I really renunciate, how do I really detach myself, and how do I remain into this world and perform my duties. Now, if you don't want to go that way, there are Buddha Purush or incarnations like Ramakrishna Paramahansa ji, Vivekananda's master, who have this advice guru important, because ये सारे सूत्रों को जीवन में सही तरीके से समझने के लिए हमें कोई माध्यम चाहिए. इसलिए वो माध्यम गुरु भगवान के बराबर है, समतुल्य है, उन्हीं का स्वरूप है. इट्स लाइक अ सेम टीचर who teaches you in the classroom. In the examination, he comes as an invigilator. That's the only difference between master and the God, भगवान और गुरु में इतना ही अंतर है. सेम चेतना है, रूप बदल के अलग अलग काम कर रही है. एक पढ़ा रही है, एक परीक्षा ले रही है. परीक्षा ले रही है देखने के लिए कि कितना और पढ़ाना चाहिए. अभी ब्यूटी ऑफ इंडियन कल्चर. आप कभी जाइए रामेश्वरम, द ब्यूटी इज सच दैट शिष्य गुरु के चरण नमन कर रहा है, दंडवत. एंड आफ्टर दैट यू विल सी गुरु शिष्य को नमन कर रहा है. Swami Vivekananda's and the relationship with his master Thakur Ramakrishna Paramahansa was absolutely the same. ठाकुर ने जब पहली बार देखा तो नाच उठे, नारायण आ गया, प्रणाम करने लगे, लौटने लगे उसके पैरों में. And he was wondering what is happening. इन्होंने कुछ भांग का नशा कर लिया है क्या, इनको कुछ पागलपन है क्या, ये कैसा है. लेकिन something majestic about Thakur Ramakrishna Paramahansa just spellbound Vivekananda. And he says, this is love, this is yoga, this is communion of two souls. I'm bringing you so many things so that anything may click. इसीलिए इतना.
उपनिषद भी जा रहे हैं, गुरु चर्चा भी कर रहे हैं, सूत्रों को भी देख रहे हैं। तो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जैसे लोग इन चीज़ों को बहुत सिंप्लीफाई करके समझाते हैं। हाउ डू आई लिव इन टू दिस वर्ल्ड? ठीक है, ईशावास्यम, सब जगह ईश्वर को देखूं, बट करूं कैसे? हाउ डू आई रियली प्रैक्टिस? Like yesterday there was one psychologist invited by SKM Yoga, I think Dr. Neeta or Neeru ji from Noida, I think Neeta ji. She was mentioning about a practice of you being on a deathbed. I did go through some of the teachings in the previous sessions. Wonderful speakers have come. Congratulations to the team. And उन्होंने बताया कि कैसे साइकोलॉजिस्ट यूज करते हैं इस टूल को टू इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ योर लाइफ. दे टेल यू इफ यू आर ऑन डेथ बेड व्हाट वुड यू विजुअलाइज, ऐसा इमेजिन करने की कोशिश करो. तो वेर एवर योर माइंड गोज एंड यू नो, अभी हमने एक रिट्रीट खत्म करी 11 से 14 तक यहीं ऋषिकेश में शिवरात्रि पे. तो वी हैड अराउंड 14 participants and in one of the evenings late night sankirtan we ended the day with the practice of what if this is the last day of your life, and the participants had to actually write it down. And next day morning when they woke up, some people were like, two people said they couldn't sleep for a long while. They were up till 3 or 4 in the morning and they actually were wondering. One of them actually went into a state of consciousness that he started asking for forgiveness from his wife, children, even after going back home. पुणे से आए थे वो, 3 दिन बाद तक उनका ये स्थिति रही. कल वो वापस एक तरह से एक इंटरेक्टिव प्लेन में आए. अदरवाइज ही वॉज कम्प्लीटली इनटू दैट प्रायश्चित मोड कि इफ लाइफ comes to an end now, which we call death, मैं क्या करूंगा अपने जीवन के साथ में. So he said, let me ask for forgiveness. He called his sister, his brother-in-law, in-laws, everyone and asked for forgiveness. Even for children, पैर छू छू के उन्होंने स्पर्श करके क्षमा मांगी. This beauty of this culture. तो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस कैसे समझाते हैं इस बात को, डिटैचमेंट को. वो कहते हैं, हैव यू एवर कट अ जैक फ्रूट? कटहल आपने काटा होगा कभी या कटते देखा होगा. What is the beauty of cutting a jackfruit? Jackfruit is very sticky in nature. बड़ा सा ऊपर से काफ़ी हॉर्नी होता है, उसको अपन हटा देते हैं और फिर उसके बाद जो अंदर जैकफ्रूट होता है वो बहुत ज़्यादा लिसलिसा होता है. So to cut it we need to keep one thing in mind. Anyone can help me with what we need to be specifically aware about before cutting a jackfruit? Anyone? Okay, let me save time. You need to apply oil on it. आपको तेल लगाना होता है, अदरवाइज आपके हाथों पे और उस पे नाइफ पे वो चिपक जाता है. Now that is where ठाकुर रामकृष्ण परमहंस, देखो गुरु कहाँ सिखाते हैं. वो कह रहे हैं कि जीवन में इसी तरह जीना चाहिए संसार में. You apply the oil of yogic principles, you apply the योग एंड स्पिरिचुअलिटी, वन एंड द सेम थिंग. आप अध्यात्म का तेल अपने हाथ पे लगाइए एंड देन यू पार्टिसिपेट इन दिस वर्ल्ड. दिस वर्ल्ड इज लाइक अ जैक फ्रूट. तो यूज, यस संध्या जी, तो यूजिंग दैट oil is very important. This oil is nothing but your inner core, your communion with that. This oil is nothing but आपके गुरु का ज्ञान, चेतना को ऊंचा उठाने वाला ज्ञान. ये अगर आपने अप्लाई कर लिया तो संसार में युद्ध करना पड़े तो क्या, किसी भी रूप में पार्टिसिपेट करना पड़े, यू विल रिमेन अनअटैच्ड और डिटैच्ड. आपकी आसक्ति नहीं आएगी. हम दुखी क्यों होते हैं? इसी वजह से. अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेषा, अभिनिवेशा, पंचक्लेशा. अविद्या इज नॉट नोइंग व्हाट इज ट्रू, कंसिडरिंग मटेरियल एज एवरीथिंग. अस्मिता इज ईगो. राग एंड द्वेष इज अटैचमेंट एंड एवर्जन, कहीं जेलसी होगी, कहीं अटैचमेंट होगा. एंड अभिनिवेश इज फियर ऑफ डेथ. ये कारण है जीवन में दुख के. तो इसीलिए कोशिश कीजिए that uplift your consciousness to a level through the teachings of the masters by remaining in touch with them. उनकी चेतना से, सशरीर नहीं. हो सकता है आपके गुरु या कोई ऐसे बुद्ध पुरुष, स्वामी विवेकानंद सशरीर उपलब्ध नहीं है, महात्मा बुद्ध नहीं है उपलब्ध, महावीर नहीं है उपलब्ध, लाओ से चले गए, बाबा बुल्ले शाह चले गए, कबीरदास नहीं मिलेंगे सशरीर, लेकिन उनकी बातें, उनकी वाणी, मीरा के भजन, सूर के दोहे, तुलसी के पद आज भी आपके साथ, हमारे साथ उपलब्ध हैं. शंकराचार्य जी आज भी कहेंगे शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिव. क्या चैतन्यता का स्तर होगा सोचिए किसी व्यक्ति के अंदर. व्यक्ति का शक्ति कहें,
कि शंकराचार्य जी से गोविंद वल्लभाचार्य जी मिले नर्मदा के किनारे, जब शंकराचार्य जी सिर्फ 7 साल के थे, और उन्होंने पूछा, बच्चे तुम कौन हो, हु आर यू? एंड दैट इज वेयर शंकराचार्य जी सेज, शिवोहम शिवोहम, मेरा कोई स्वरूप नहीं है, न मैं राग द्वेष, न मैं लोभ मोह, है ना, न मैं पिता हूँ, न पुत्र हूँ, न गुरु हूँ, न शिष्य हूँ, न अहम भोजनम नैव भोज्यम, न भोक्ता चिदानंद रूप, न मैं भोजन हूँ, न भोग करने वाला हूँ, मैं तो सबसे अलग एक चिदानंद स्वरूप हूँ। मैं आपको क्या बताऊँ मैं कौन हूँ? निर्वाण षटकम कभी सुनिएगा, गाइएगा, मजा आएगा, आनंद आएगा। ज़्यादा बातें नहीं करूँगा क्योंकि घंटों बात हो सकती है, इतना सारा हमारी संस्कृति के पास है, और फिर भी वह थोड़ा सा आप तक रख पाऊंगा, इन केस यू कुड पिक एनीथिंग आउट ऑफ इट। The whole structure of this talk, which was structureless, it was a complete flow by divine, is actually about staying into that state of consciousness। उस चेतना की स्थिति में बने रहने का बहुत सारे टूल्स हैं। एक टूल है ओरिएंटेशन, आपका उन्मुखीकरण। अर्जुन वॉज स्पेशल ओनली बिकॉज ऑफ वन रीजन, अदरवाइज देर वर वॉरियर्स। एकलव्य उनसे ज़्यादा अच्छे धनुर्धर थे, कर्ण बहुत अच्छे वॉरियर थे, सुपीरियर देन अर्जुन। बट वाई वॉज अर्जुन फेवर्ड बाई गॉड? डू समथिंग व्हेन गॉड फेवर्स यू। इंसानों का फेवर हम कितना लेंगे? जब परमात्मा की शक्ति आपके साथ, गुरु की शक्ति आपके साथ लग जाए, ऐसा कुछ किया जाए, परमात्मा कहे नहीं मुझे अर्जुन चाहिए। Arjun had won the battle the way when he was very clear, when it was an offer from Lord Krishna, I'm not going to fight, I'm just going to be with you as an advisor or your Sarathi, and I will not be picking up any weapon. And this is my army. What would you like to have? Duryodhan picked the army, material, Padarth. Arjun picked Lord Krishna without an iota of doubt. This was special about Arjun. भीम अपनी ईगो के लिए लड़ रहे थे, मैं उसके छाती फाड़ के, जिसने दुशासन ने मेरी पत्नी अर्जुन की पत्नी के साथ ऐसा किया उसके साथ करूंगा, इस प्रतिज्ञा की पूर्णता के लिए लड़ रहे थे। भीष्म बीइंग अ डिसाइपल ऑफ लॉर्ड वाज अगेन अबाइडिंग हिमसेल्फ विद द प्रतिज्ञा। उन्हें प्रतिज्ञा छोड़ देनी चाहिए थी। ऐसी प्रतिज्ञा किस काम की जिसके लिए अधर्म का साथ देना पड़े? छोड़ देना चाहिए था। इसलिए भीष्म को भी मरना पड़ा, अधर्म का जो साथ दे रहा है। लेकिन अर्जुन क्यों स्पेशल थे? नर और नारायण में नरों में श्रेष्ठ क्यों हुए? बिकॉज ही वॉज ऑलवेज ओरिएंटेड, उनका उन्मुखीकरण ईश्वर के प्रति था। बस ये परमात्मा मुझे चाहिए, जिसका ये चिंतन चल पड़ा। ये प्रैक्टिकल टूल है, आप करके देखिएगा। इसलिए जब हम बांटते हैं ना, वो प्रसाद वाली बात आपसे कह रहा था, भोग अर्पित करते हैं लेकिन बांटते तो क्या है, अब चेतना बांट रहे हैं। अब आप सिर्फ भोग नहीं बांट रहे हैं, और इसलिए लेने वाला भी उसको हाथ लेके ऐसे कर रहा है कि हाँ ये प्रसाद है परमात्मा का, ये सिर्फ कुछ पदार्थ नहीं है, कुछ मिष्ठान नहीं है, कोई नैवेद्यम नहीं है, इसके पीछे उसकी चेतना काम कर रही है। इफ यू कैन हैव दिस व्यू बिहाइंड एवरीथिंग कि ये परमात्मा से होके मुझ पर आया है, परमात्मा की वजह से मुझ तक आया है, और इससे होने से मुझे मेरी चैतन्यता मिलेगी, इससे जुड़ने से। ये कॉन्शियस ओरिएंटेशन बना लीजिए। छोटे छोटे टूल्स हैं, करते चलिए, आपको बड़ा आनंद आएगा। जीवन एक चेतना में स्थिर हो जाएगा। एंड इन दैट कॉन्शियसनेस यू विल सी yourself and your surrounding, everyone around you being uplifting। गुरुदेव कहा करते थे, अपना सुधार करोगे बेटा तो तुम ऊंचा उठोगे, और जो सोल्स कॉन्शियसली तुम्हारे साथ कार्मिक स्तर पे जुड़ी हुई हैं उन्हें भी ऊंचा उठने का मौका मिलेगा। दिस इज हाउ वी आर ऑल इंटरकनेक्टेड एट कार्मिक एंड सोल लेवल ऑल्सो। आप एक अच्छा काम करेंगे, हो सकता है कोई ऐसी सोल जो जीवन में अभी तक आपसे मिली ना हो, आज से 10 साल बाद मिलने वाली हो, और बिल्कुल थोड़े से समय के लिए मिलने वाली हो। इवन दैट ऑटो रिक्शा ड्राइवर और कैब ड्राइवर जो आपको पिकअप एंड ड्रॉप दे रहा है वंस इन अ वाइल, कभी रास्ते चलते, या आपने कोई सामान खरीदा, क्योंकि आपका उसके साथ कार्मिक एक्सचेंज था, यू गॉट कनेक्टेड। अनायास कुछ नहीं हो रहा, नथिंग इज अ chaos और अ कोइंसिडेंस, एवरीथिंग इज अ परफेक्ट डिजाइंड स्ट्रक्चर। उस इक्वेशन में आप और हम मिल रहे हैं आज अनायास ही, न जानते हुए एक दूसरे को। मुझे पता ही नहीं है कौन अभी सुन रहे हैं, कौन बाद में सुनेंगे, आप भी नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी एक कर्म के संबंध ने हमें एक दूसरे से जोड़ा है। And if anything I do which is a sin, which puts my soul down, sin क्या है, पाप क्या है, आत्मा के विरोध में जाना, और पुण्य है आत्मा के फ्लो में जाना। तो जब मैं आत्मा के साथ जुड़ के कुछ अच्छा करूंगा, आप मुझसे आज मिले हो, नहीं मिले हो, कभी और मिलेंगे मालूम नहीं, लेकिन जितनी सोल्स कनेक्टेड होंगी सबको ऊंचा उठने का साहस मिलेगा, उत्साह मिलेगा, उल्लास मिलेगा। एंड देयरफॉर आई कीप टेलिंग, बीइंग हैप्पी इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स नॉट अ चॉइस। बी हैप्पी, बी इन अ बैलेंस, बिकॉज आप जब खुश होंगे,
नहीं जानते आप कितनी सोल्स को मदद मिल जाएगी, और आपसे अगर कोई गलत चीज़ होगी तो उसका इम्पैक्ट दूसरों पर भी आएगा। दिस इज हाउ वी आर इंटरकनेक्टेड। सिमिलरली आपके ऐसा इसका इस थ्योरी को भी आप प्रूव कर देता हूँ। आपको कभी कभी ऐसा लगा होगा, आज मन बड़ा प्रसन्न है, अनायास ही खुश है, पता नहीं क्या बात है, लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा है, फ्रेश लग रहा है। नथिंग हैज चेंज इन योर सराउंडिंग। ऑफिस का स्ट्रेस वही है, घर की परेशानियां वही हैं, जीवन की शरीर की परेशानियां वही हैं, फिर भी आप खुश फील कर रहे हैं, क्योंकि कहीं किसी ने कोई बहुत अच्छा काम किया था जिसका पुण्य फल आपके साथ शेयर हुआ, बिकॉज यू आर कार्मिकली कनेक्टेड विद दैट सोल। और कभी कभी ऐसा भी होता है, फॉर नो रीजन, बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल, वी फाइंड आवरसेल्व्स हैविंग दीज मूड स्विंग्स, इरिटेशंस एंड ऑल। कभी कभी उसका कारण ये भी होता है कि हम जिनसे जुड़े हैं उनके द्वारा कोई ऐसा काम हुआ है, तुरंत प्रेयर करिए उसी समय, ठीक आज मूड खराब है, थोड़ा 1 minute if I can just sit and pray कि अगर ये मेरे शरीर की वजह से हुआ है, मेरे मन की वजह से हुआ है, तो वो भी ठीक हो जाए। एंड इफ इट इज somebody else karmic thing because of which I am getting this, मैं उनके लिए भी प्रेयर करूँ, and let that person also evolve। जीवन का एक ही उद्देश्य मेरी समझ में आज तक आया है, 9 साल शांति कुंज आश्रम में रहने के बाद, और पिछले 4-5 साल से पॉज एंड लर्न के इनिशिएटिव के साथ, कि नाम भी यही रखा, आदमी पॉज ले और सीखे, जीवन को जीना सीखे। उस ठहराव में अगर एक ही चीज़ समझ में आई आज तक, वो है कि माध्यम बनिए, बी अ कनेक्ट पॉइंट बिटवीन दैट डिवाइन एंड दिस वर्ल्ड। इफ यू कैन बिकम दैट मीडियम, यू कैन कंटिन्यू टू सर्व पीपल विद हैप्पीनेस। एक सवाल आया है, ले लेता हूँ विद परमिशन, and I think it's almost time. We started 10 minutes late and then there was an internet abruption, so 2-5 मिनट और बैठ लेते हैं। प्रश्न आया, how can one stay happy when one is in an unhappy marriage? शुरुआत में जब ये इंटरनेट ब्रेक हुआ था ना, I had expressed that one thing which we must learn is acceptance, स्वीकार्यता का भाव। Acceptance doesn't mean, it's a broad topic, but in a nutshell, acceptance doesn't mean that you cannot disagree or you cannot oppose. But acceptance means that yes, what is happening in my life, nobody else is responsible for it. एक बहुत कड़वा सत्य है, अंग्रेजी में कहते हैं sufferer is the cause। अगर मैं पीड़ित हूं तो उसका कारण मैं ही हूं। ये योग की विद्या है, भीतर देखना पड़ता है कहां से आ रहा है, where is the origin point? I have attracted it, I have attracted this sorrowness, this misery in my life, this pain in my life, and this has happened because of my own karma। कॉज को जब ढूंढ रहे हैं आप, कॉज ही तो पूछ रहे हैं ना, कॉज कहाँ से है? कॉज यही है, कॉज मैं ही हूँ, कोई और कॉज नहीं है। आपके जीवन में कोई आपको दुखी नहीं कर सकता, न प्रकृति, न व्यक्ति, न कोई और प्राणी, कोई नहीं पर परेशान कर सकता। वो सिर्फ तभी होता है जब हम स्थिरता में नहीं होते। अस्थिर हमें सबसे पहली चीज बना लेती है हमारा ईगो। हम ये कर देते हैं ना कि ये मेरे जीवन में ऐसा कर रहे हैं, इमीडिएटली माई ईगो सेज आई एम समथिंग, पूर्णमदः पूर्णमिदम, हम पूर्णता की बात छोड़ देते हैं। हम क्या कहते हैं, तुम हमारे जीवन में दुख का कारण हो। ये ऑफिस, ये घर, ये सोसाइटी, किसी को अपनी गाड़ी पसंद नहीं आ रही, किसी को अपने बच्चे पसंद नहीं आ रहे, किसी को माँ बाप पसंद नहीं आ रहे। परसों दिल्ली में घटना घटी, बहुत ही दर्दनाक घटना, एक उसका वीडियो भी वायरल हुआ है। एक पति पत्नी बहस कर रहे थे सड़क पे खड़े होकर, और बूढ़ी माँ भी खड़ी थी, किसी ने वीडियो देखा हो तो पता नहीं। और कुछ बहस हो गई, कुछ बात हो गई, किसी बड़े लोहे के दरवाजे के सामने खड़े, सीसीटीवी कैमरा पे कैद हुआ सड़क पे। उस बेटे ने, जो कि 40, 45, 50 साल के होंगे, और उनकी बूढ़ी माँ जो कि 70, 80 साल की होंगी, उन्होंने बहुत तेज चांटा मारा अपनी माँ को, वहीं गिर गई बूढ़ी औरत, बेचारी एकदम पतली दुबली सी, और मर गई अस्पताल ले जाते। ये संसार है जहाँ पर ये सब हो रहा है। आदमी का गुस्सा, उसका रेज उससे क्या करवा रहा है मालूम नहीं। 2-2, 5-5, 10-10 रुपए पे हत्या हो जाती है। कितनी बार आप पढ़ते होंगे। ये मेरा ईगो है जो मुझे बांधता है, जो मुझे कहता नहीं मैं अलग हूं, तुम अलग हो। वैवाहिक जीवन का एक सूत्र गुरुदेव ने कहा था, वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। गुरुदेव कहते थे, और वैवाहिक जीवन नहीं, कहीं भी किसी भी संबंध में, चाहे बच्चे के साथ, चाहे गृहस्थ का और कोई धर्म, और चाहे समाज के साथ। सन्यासी के धर्म अलग हो जाते हैं, जो संसार छोड़कर, समाज छोड़कर थोड़ी देर कंदराओं में, गुफाओं में चले जाते हैं, लेकिन उनके अलग धर्म हो जाते हैं। लेकिन जो संसार में हम आप जी रहे हैं, उनके लिए गुरुदेव ने कहा कि अपने कर्तव्यों को और अधिकारों की तुलना में कर्तव्यों को अधिक महत्व दें। आप कोशिश करिए
क्योंकि सवाल मन ये उठाएगा संध्या जी कि मैं क्यों करूं शुरुआत, यहाँ फिर ईगो आ जाएगा, वो क्यों नहीं करते, मैं कर्तव्य निभाती रहूं और वो अधिकार जमाते रहे, ये कौन सी बात हुई। मन ये सवाल उठाएगा। अभिनिवेश नहीं, सॉरी, अस्मिता आएगी कि नहीं, मैं कैसे, मैं मीनेस, आईनेस, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ना होगा। ताली हमेशा दो हाथ से बजती है। ये तो मैं बिल्कुल एक जेनरिक बात कह रहा हूँ, स्पेसिफिकली आपको कभी बात करनी हो तो आप मैसेज करिएगा, फ़ोन करिएगा, तब देखेंगे। लेकिन दोष एक दूसरे का निकालते रहने से बात नहीं बनेगी। ये देखना होगा कि मेरे कर्तव्य क्या हैं। हरिद्वार के पास एक स्थान है कांगड़ी गांव, शिवम जी जानते होंगे क्योंकि हरिद्वार में आप भी रहे हैं। और वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी है, गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी, यूजीसी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है, जिसके फाउंडर थे, अब तो उन्होंने देह त्याग कर दिया, श्रद्धानंद जी। श्रद्धानंद जी का बायोलॉजिकल नेम मुझे याद नहीं, शादी के समय तो उनकी जो पत्नी थी, श्रद्धानंद जी खूब शराब पीते थे जब उस रूप में थे, बाद में श्रद्धानंद हो गए। और जब खूब शराब पी के घर आते थे उल्टी करते थे, कभी पत्नी पे हाथ उठा देते थे और बिल्कुल बिस्तर पे पड़ जाते थे, चारपाई पे, कभी ज़मीन पे, कभी कभी तो घर के बाहर, और वो उठा के उन्हें अंदर लाती थी और उनकी साफ़ सफाई करती थी, कपड़े बदलती थी, पंखा जलती थी। बहुत पुराने समय की बात है, लगभग 70-80 साल पुरानी। और उसके बाद श्रद्धानंद जी एक दिन होश में आए तो देखा उनकी पत्नी पंखा जल रही, तो पूछे तुम कौन हो। बोले मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। भाई आपकी पत्नी है, आप मुझे ब्याह के लाए हैं। अरे मैं तो तुम्हारा नाम भी भूल गया हूँ, चेहरा भी भूल गया हूँ। बोले कोई बात नहीं, आपका जीवन शैली ऐसा है, इस वजह से ऐसा हुआ होगा। तो बोले मैं रोज़ ऐसा करता हूँ। बोले हाँ रोज़ ऐसा करते हैं, रोज़ यही होता है, कभी कभी तो इससे भी बुरा होता है। और देखा कि 2 थालियाँ लगी हुई हैं। बोले तुमने भोजन भी नहीं किया। बोले आप खाते हो, उसके बाद मैं खाती हूँ। उस दिन उस व्यक्ति का के अंदर श्रद्धा जागी, एक आनंद जागा। बोले ये मैं क्या कर रहा था अपने साथ, अपनों के साथ। चेतना ऊंची उठ गई। किसकी वजह से? उस महिला की वजह से। वो उनकी गुरु बनी। श्रद्धानंद जी ने घर घर जाकर भिक्षा मांगी, बच्चों को पढ़ाया, करते करते एक यूनिवर्सिटी बन गई। तुलसीदास जी की कहानी भी आपको पता होगी। 69 वर्ष की आयु में कामासक्ति, 69 ईयर्स के हो गए थे, काम की आसक्ति इतनी की पत्नी के पीछे उसके मायके चले गए, बाढ़ में तैर के चले गए, सांप को रस्सी समझ के ऊपर चढ़ गए। और पत्नी ने गुरु जगा, उनके अंदर उनका शिष्यत्व जगा दिया। पत्नी उनकी पहली गुरु बनी। उन्होंने कहा इतनी भक्ति तुमने मेरी जगह राम की होती तो परमात्मा मिल गया होता। अपने अंदर के शीलता को, द्रौपदी का शील था, सावित्री का सत्यव्रत था, इसलिए उसे सत्यवान मिला। तो ये ऐसी कहानियाँ हैं, ऐसी बातें हैं। मदालसा जब माँ बनी तो उनकी शर्त थी बच्चे को मैं ही पालूंगी 5 साल तक, कोई दखल अंदाजी नहीं। तो ये आप नारी का एक महान गुण है, उसकी शीलता, उसकी शक्ति है। इसलिए जो भी बहनें माताएं मुझे सुन रही हैं, इस बात को ध्यान रखिए कि अपने अंदर की उस शीलता को, उस शक्ति को भूलिए मत। वो कुछ भी चमत्कार कर सकती है। आप जनक, आप एक तरह से जन्म देने वाली जननी हैं। आप जननी हैं, तो सृष्टि का संचार, सृष्टि की बढ़ोतरी आपके माध्यम से हो रही है। ये सिर्फ संतान उत्पन्न की बात नहीं है, चेतना की उत्पत्ति भी है। सृजन गायत्री से हुआ है। आद्य शक्ति कहते हैं हम। शक्ति के बिना शिव शव हैं, अनेक जगह प्रमाण मिलता है। भीतर की उस शक्ति को पहचानिए, अपने अंदर हीनता का भाव मत आने दीजिए। और उस शक्ति के आधार पर ऐसे अनन्य उदाहरण आपको संसार में मिल जाएंगे जहाँ परमात्मा साथ जुड़ता है। और एक और बात कह दूँ जाते जाते, परमात्मा के एक तरीका होता है अपने आप से हमें जोड़ने का। संसार की भुलावे में हम इतना ज़्यादा भटक जाते हैं कि परमात्मा हमें वापस सही जगह लाने के लिए, जैसे गडरिया होता है ना, शेफर्ड, तो भेड़ खूब जगह भागने लगती हैं, गाय भागने लगती हैं, तो वो उनको चरवाहा जो है दिशा में लाने के लिए हाँकता है, कभी कभी छंटी से, लकड़ी से। परमात्मा का एक तरीका होता है हमें एक दिशा में लाने का, हमारी आसक्ति तोड़ने का। थैंकफुली भगवान की दया से आपके साथ आपके जीवन साथी हैं। बहुत सी माताएं बहनें हैं जिन्हें जीवन ही ऐसा जीना पड़ा है जहाँ साथी चला गया, मृत्यु छीन लेता है वो सब जो तुम्हें उससे दूर करता है। परमात्मा का कुछ तरीका है ऐसा। तो कहीं ना कहीं जब हम दुखी होते हैं तभी तो परमात्मा की याद आती है। अगर सुख में सुमिरन सब करें तो दुख काहे को होए, कबीरदास जी ने कहा ही। तो हम दुखी जब होते हैं तो हमें परमात्मा की याद आती है, माँ की याद आती है। इसलिए दुख सुंदर है इस मामले में, वर्ण करिए, उसका क्या दिक्कत है। परमात्मा की याद अगर दिलाता हो तो ऐसा दुख अच्छा है ना। दीदी मेरा एक नंबर है, आप लिख लीजिए, और नहीं तो शिवम जी से भी मिल जाएगा। मेरा अंकुर मेहता नाम है, उसी नाम से प्रोफाइल पेज है,
पॉज एंड लर्न से हमारा इनिशिएटिव का पेज है। मेरा नंबर है 90, शिवम जी अगर आप लिख दें प्लीज़, अगर आप अभी साथ में हैं तो, 9011048159। मैं पहले तो आपकी सराहना करता हूँ कि आपने अपने जीवन का व्यक्तिगत प्रश्न इतना खुल के इस मंच पर पूछा जो कि लाइव है। ये आपकी भीतरी शक्ति का प्रमाण है। 9011048159। छोटा मोटा जो थोड़ा बहुत जानना है वो आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत अच्छी बात है। डिवोर्स इज नॉट एन ऑप्शन एंड नेवर इज, होना भी नहीं चाहिए। विघटन क्यों, मैं यहाँ लिख दूँ नंबर, विघटन क्यों होना चाहिए, जीवन में विघटन नहीं आना चाहिए। सेपरेशन इज अगेंस्ट योग ना, योग इज अबाउट यूनियन। और अभी हम अगर सेपरेशन किसी भी तरह का करें, वो सेपरेशन, हमारे यहाँ जब पढ़ाई भी पूरी हो जाती है ना तो समावर्तन होता है। पढ़ाई पूरी हो गई गुरुकुल में तो उसके बाद शिष्य अलग थोड़ी हो गया, समावर्तन आ जाएगा। When I made a Vrajvasi priest look at my destiny, he said marriage happiness is not in my। ठीक है, डेस्टिनी कैसे काम करती है, और किसी ने अगर आपको ऐसा आगे का संकेत किया है तो उसे भी बदलने के तरीके हैं। योग इसी तप शक्ति का नाम है। हमारे ऋषियों ने ऐसे ऐसे तप के विधान बनाए जिससे, देखिए आपकी बात, एक बात फिर चलिए जो लोग साथ हैं सुनना चाहें तो, दीदी ने कहा कि किसी ने इनकी कुंडली देखी या किसी विद्वत व्यक्ति ने इन्हें बताया कि गृहस्थ का सुख तुम्हारे जीवन में नहीं है। सत्यवान तो मर गए थे, सावित्री की शक्ति उन्हें वापस ले आई। इस सावित्री की पवित्रता थी कि सत्यवान कम आयु में चले गए फिर भी वापस आए। नचिकेत जब गए भगवान यम के द्वार पे तो वहां से लौट आए, ब्रह्म विद्या लेकर आए। तो जीवन मरण से परे जाने के हमारे साथ कम से कम अभी जीवन मरण वाली मृत्यु वाली स्थिति तो नहीं आई, वहां तक का भी तब विधान सुनिश्चित हमारे ऋषियों ने कर दिया है। तो क्यों नहीं फिर उसका थोड़ा सा सदुपयोग करें और उन टूल्स को अपने जीवन में उतार के सब कुछ पाया जा सकता है, पदार्थ भी और चेतना भी। लेकिन ये ध्यान रखिए कि कौन सोर्स है, चेतना से पदार्थ पैदा हुआ है, तो चेतना से जुड़ने में समझदारी है ना। गुरुदेव कहते थे समझदारों की ना समझी, फॉली ऑफ द वाइज इज वी नो व्हाट द सोर्स इज बट वी डू नॉट वांट टू कनेक्ट विद इट। इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या होगा। स्वामी विवेकानंद याद आ गए, एक पंक्ति कह के फिर विराम दूंगा। कहते थे, उनसे किसी ने पूछा अंधा होने से ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या है, तो बोले अंधा होने से ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि तुम्हारी दृष्टि चली जाए। हम सब आँख वाले अंधे हैं, क्षमा करना, हमारी दृष्टि नहीं जा रही कहाँ जानी चाहिए। हम पदार्थ पे अटके हुए हैं, चेतना देखते नहीं है, क्योंकि चेतना देखते नहीं, उससे जुड़ते नहीं। कभी कभी जुड़ते तो कहते हैं आह आनंद आ गया, फिर भूल जाते हैं उसको। माया इतनी प्रबल है और हमारी अविद्या, हमारी बुद्धि इतनी ज़्यादा जड़ है। अभ्यास यही किया ना जीवन भर, कई जन्मों से जड़ता के पीछे भागने का, तो जड़ता की तरफ तुरंत भाग पड़ता है मन, चेतना की तरफ कभी कभी जाता है, जब दुखी होता है तब जाता है। तो आप में से जो लोग भी दुखी हैं संसार में सभी दुखी हैं एक दृष्टि से, तो दुख का एक बड़ा उपकार हमारे ऊपर यह है कि दुख हमें भगवान से जोड़ने का एक रास्ता है। स्वीकारिए उसे, एक्सेप्ट करिए और फिर उस परमात्मा से जुड़ने में जो आनंद है उसको लीजिए। यही योग की विद्या है। थोड़ा बहुत जो पता था आपके बीच में रखा। फिर से शिवम जी का और उनकी पूरी टीम का, एसकेएम योगा का बहुत बहुत आभार और उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अच्छा काम कर रहे हैं, इसी तरह करते रहें। और जिस सेवा का अवसर अभी आपने प्रदान किया, ऐसा कभी भी कुछ हो बताइएगा, जो भी संभव होगा थोड़ा बहुत बिल्कुल सहयोग करेंगे। तो क्योंकि मैं ही लाइव हूँ, ऐसा नहीं है कि कोई और उसे अभी बीच में कुछ कहेंगे। लाइव सेशन 1-on-1 चल रहा है, तो मैं ही यहाँ से शांति पाठ पढ़ देता हूँ। वही शांति पाठ करेंगे बृहदारण्यक का, मैत्री जी ने जो अपने गुरु, अपने पति याज्ञवल्क्य जी से कहा था, वही हम परमात्मा से कहेंगे कि हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, अविद्या से विद्या की ओर, मृत्यु से अमृत की ओर, जड़ता से चैतन्यता की ओर, शरीर से आत्मा की ओर, आत्मा से परमात्मा की ओर लेते चले जाए, है ना। यही प्रार्थना करेंगे। एक बस 2 मिनट लेंगे आपके। दोनों हाथ गोद में रखिए भगवान बुद्ध की तरह, बायां हाथ नीचे, दायां हाथ ऊपर। शरीर स्थिर कर लीजिए, स्थिर, नेत्र कोमलता से बंद। मन में प्रसन्नता का, कृतज्ञता का भाव लाइए, ग्रेटिट्यूड। कृतज्ञता से परमात्मा मिलता है, आनंद मिलता है। फील ग्रेटफुल
फॉर वॉट ऑल हैज़ हैपन इन योर लाइफ इन दिस मोमेंट। अभी कुछ तो ऐसा होगा आज के दिन में कम से कम। फील ग्रेटफुल टू दीज ऑर्गेनाइजर्स हु arranged all these things. Feel grateful to the divine that all this came towards us. Feel grateful to the rishis who shared this knowledge with us, who created this. उनका सब कुछ है, हमारा आपका नहीं। और उनसे यही प्रार्थना कि हमारा जीवन अंधकार में है, तमस में घिरा हुआ है, जड़ता में है, मृत्यु के भय में कांप रहा है, इसे अभय बना दीजिए, इसे चैतन्य बना दीजिए, प्रकाशमयी बना दीजिए। मेरे मन के अंध तमस में हे ज्योतिर्मयी उतरो। इस भाव से शांति पाठ। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में मलिए। प्राप्त हुई दिव्यता को मुखमंडल पर, हृदय स्थान पर स्पर्श कराएं। सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत प्रणाम। उस गुरु चेतना को नमन जिनकी असीम अनुकंपा से ये सत्संग संभव हो पाया। प्रणाम।